Hey guys, so today we are going to do the identities, right? So we are going to learn about the identities. So let me share my screen. Here we have a screen. Okay. So first we will learn, we will check the identities, right? What are the identities? Let's talk about the identities. We have the first is A plus B whole square, right? The first identity is A plus B whole square, right? So it is A square plus B square plus 2AB. Okay. The second one is A minus B whole square, which is A square plus B square, and minus will be there in 2AB. Okay. So A plus B whole square is A square plus B square plus 2AB, and minus will be A square plus B square minus 2AB, right? The third one is A square minus B square. Okay, so which is A minus B and A plus B. So when we have A square minus B square, it means it is A plus B and A minus B. Okay, there is a multiplication. Okay, so both are in multiplication. The fourth one is A plus B plus C whole square. So it will be A square plus B square plus C square. Okay, we will, all the variables are there. We will first make the square of those, and then we will have first AB. So 2AB, then 2BC, and then 2CA. Okay, so first we will see the question related to the A plus B whole square, A minus B whole square, and A square minus B square. Okay, we will check the questions related to these one. Okay, so let's see the questions. Okay, here we have first question. Let me erase it. The first question is here, 3x 3x plus 2y equal to 12. Okay, and xy is given, which is 6, and we need to find out the value of 9x square plus 4y square. So हमें given है 3x plus 2y, हमें find out करना है 9x square plus 4y square. So जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, as you know, 9x square, 9 is a square of 3, and x square is a square of x. 4 is a square of 2. So what we need to do, it means we need to use the square a plus b whole square. Okay, so we have 3x plus 2y whole square. So 3x आप क्या लोगे, इसे complete a, and 2y it's complete b. Okay, so इस पे हम अप्लाई करेंगे 3x whole square यानी कि a square and 2y b square. Okay, 2y square plus 2 times 3x into 2y. Understood? So 3x plus 2y whole square हमने इसे बनाया. 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 2y का हो जाएगा 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 times 2 is 6, 6 times 2 is 12xy. ओके, हमें फाइंड आउट करना है ये, तो इसको हम रखेंगे एज इट इज, और यहाँ पे 3x plus 2y होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है 12, सो उसका 12 स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेंगे. ओके, सो 12 स्क्वायर विल बी 144, 9x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 12xy की वैल्यू गिवन है 6, सो आप उसको पुट कर लेंगे 12 times 6 विच इज 72. ओके, अब 72 हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो 144. जब भी हम whenever we transfer any value from left side to the right side or right side to the left side, the sign will get changed. इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -72, और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. So 144 minus 72 will be the same 72. So 9x square plus 4y square will be 72.
अंडरस्टूड? ओके, वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इसको चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ओके, सो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो लेट मी जस्ट copy it and we will do it hopefully. So here we have a question. हमें already given है x plus वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स। सो हम इसका क्या करेंगे, मुझे एक्स स्क्वायर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर लूँ। ओके, और इसका जब स्क्वायर वैसे ही हम ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी। सो टू इंटू एक्स एंड वन अपॉन एक्स। अब x एंड वन अपॉन एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ टू। और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर करेंगे, और ये तो मुझे निकालना ही है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे आ गया टू, सिक्स का स्क्वायर हो गया 36, ये टू इधर आएगा तो माइनस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 34। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर फोर एंड वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर। सो इसको जब हम करेंगे, सो x टू द पावर फोर आपको कैसे मिलेगी, जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा x टू द पावर फोर। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी x टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर। और जब इसको टू टाइम्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा सिर्फ टू। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप अभी अभी फाइंड आउट किया आपने, विच इज 34। सो आप इसको 34 का स्क्वायर करेंगे, 34 का स्क्वायर, और ये हमारे पास है एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस टू। और 34 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। सो 34 का स्क्वायर, अब 30 स्क्वायर मतलब when we multiply a number 34 times 34। ओके, सो 34 टाइम्स 34 का आपको एक इजी वे बताती हूँ, क्या कर सकते हैं आप। 34 का स्क्वायर जब आपको निकालना है, सो 34 है, इसको हमने लिखा, इसमें से इसका नियरेस्ट जो 10 है ना 30, तो एक को हम 30 बनाएंगे, तो 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 को माइनस करना है। सो 34 माइनस 4। ओके, और इसमें उतना ही मैं ऐड कर लूंगी, 34 प्लस 4, और आपने 4 को माइनस और प्लस करा है, तो मैं उतना ही ऐड कर लूंगी, 4 का स्क्वायर 60। अब ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 38 प्लस का 16। अब 30 और 38 को मल्टीप्लाई करना इजी है, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 and 4 and 0 plus, so it will be 6 5 1 1 1156 जो हो गया इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका बना 1156 इज इक्वल टू, एंड ये 2 भी है तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये -2 हो जाएगा। सो -2 विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। सो हो जाएगा 1154 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और ये आपका आंसर। ओके, सो आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि कैसे करने हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। x प्लस वन अपॉन एक्स आपको गिवन था विच इज इक्वल टू 6, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ इट। सो x प्लस वन अपॉन एक्स का जब आप होल स्क्वायर करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स a इंटू बी है, तो a भी हमारा x है, b हमारा वन अपॉन एक्स है, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 बचा। फिर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेंगे विच इज 6, इट विल बी 36। 36 से वो वाला 2 हम इस साइड लेके आए, तो माइनस हो गया, 34 बन गया, हमारी वैल्यू आ गई। अब जब भी हमारे पास x टू द पावर 4 है, तो 4 मतलब मुझे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, x टू द पावर 2 का एक और स्क्वायर। सो x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर टू x टू द पावर 2 होल स्क्वायर, सो इट विल बी x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, और हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद भी हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे।
बट दूसरी वीडियो में। थैंक यू।